derivation side to get the part difference. Not doing that. Mainly coming to synopsis and everything. Derivation चाहिए तो बता देना मैं कर मतलब लेक्चर के बाद क्वेश्चन पे कर लूँ. Right? Put heading interference of light. Now what I need is this part. Only से लिखना चाहिए मुझे. Put heading interference of light. Around the phenomenon of enhancement into bracket addition and cancellation into bracket subtraction. The phenomenon of enhancement and cancellation, enhancement into bracket addition, cancellation into bracket subtraction. The phenomenon of enhancement and cancellation of stand jaldi karo guys taking. The phenomenon of enhancement and cancellation of two light waves arriving at a point simultaneously by principle of superposition of waves and subsequent redistribution of energy into bracket or intensity, subsequent redistribution of energy or into bracket intensity is called interference of light. Now listen properly. In order to study this, two experimental setups. One is YDAC matlab Young's double slit experiment, and the other one is a biprism experiment. And biprism में आसानी. अब listen properly. Double slit tube, coming to that. एक wave होगा तो ये cancellation enhancement नहीं होता ना. It will be uniform illumination. So in that case, you don't see the interference pattern. दो source होने चाहिए तो overlap है. Superposition principle arriving simultaneously. तो कुछ होगा. And that also, it is quite possible those source लिए मैंने कुछ light आ रही है at some point simultaneously when they are arriving. It may be necessary that crest के साथ crest या crest के साथ trough नहीं कुछ half crest और half trough भी overlap कर सकते. It's quite possible. We don't consider that. I mean, we don't take this into consideration. We will only be considering either bright completely or dark completely. मैं ये बोल रहा हूँ. If this is one source, okay? सुजन अभी ये source के reference में ना wave ऐसा मत सोच, wave front सोच, wave fronts. ये crest, ये trough, ये crest, ये trough, like that. समझ में आ रहा है? And I now take one more source here. Please do not draw this. Please do here now. I take one more source. तो उससे भी ये crest मिलेगा, trough मिलेगा, and आगे जाके वो plane wave front हो जाएगा. So you see some space, some points of the medium at which at that instant वो change हो सकता है. You find continuously crest के साथ crest क्या कर रहा है overlap कर रहा है. देख रहा है crest के साथ crest dark line crest है ना यार.
हाँ ना? तो ये सब ब्राइट बैंड्स वाले पॉइंट्स हैं where they are in phase, two waves are arriving. There are some points इसे ड्रॉ नहीं करना है. There are मुझे कुछ मैथमेटिकल समझना है. There are some points where क्रेस्ट के साथ ट्रफ ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे तो डार्क बैंड बनेगा. तो पूरे स्पेस में मीडियम में there is alternate dark and bright bands will be formed. So some points पे there is an enhancement, addition हो रहा है amplitudes का. Some points पे cancellation हो रहा है, and you get some patterns that is called interference pattern. There can be any number of sources. We study with respect to how many sources to do. अब experimental setup क्या होता है? ये concept है, but इससे आप समझेगा कुछ नहीं ना. Experimental setup क्या है? This do here. The very first lecture, last lecture में भी start किया था, मतलब बोला था. Last lecture में only half part was of this. That the two sources should be coherent. Coherency is to get the steady interference pattern. कैसे interference pattern? Steady. Steady मतलब एक पॉइंट पे अगर bright है तो continuously you find that that point will be always illuminated bright. Maximum intensity रहेगा. एक पॉइंट dark है तो always you find that वहाँ पे dark point ही बनता है. For that sources should be coherent. तो there are many conditions. बार-बार बोलते रहूँगा, वो पूरा लिख के भेज भी दूँगा ग्रुप में, जितना necessary notes है. Now point is coherence is how? I mean how is it possible? मैंने बोला कितने भी दो identical source ले लो, exactly identical, no change, absolutely no change, they will never be coherent. अरे मैं तो बोल रहा हूँ एक source के अंदर there are two atoms भी ले लिए, वहाँ से भी whatever atomic vibrations you get energy, even they are not going to be coherent. तो दो source तो possible ही नहीं. You never get coherent sources. Coherency का मतलब either the phase difference is zero or it is constantly maintained. No two atomic levels के बीच में, atomic vibrations के बीच में coherency possible ही नहीं, because that's really very rapid and completely random, and it is very rapidly varying also, and it is completely unpredictable, because तो atom के बीच में collision हुआ तो उसका phase change हो जाएगा, and that is bound to happen. Source is getting heated up along with that when the collision takes place. उससे वो light energy emit कर रहा है, तो heating की वजह से collision तो होगा ही. तो continuously phase keeps on changing. ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. In short, you imagine you have got one source. Source मेरे पास एक ही है. That is only from your if you derive two sources, then and then only they can be coherent. अब दो source actually ले लिया ऐसा अलग अलग, S and S dash, they can never be coherent. Possible ही नहीं. So मेरा intention क्या है? एक ही source में से दो derive कर रहा हूँ. दो क्यों? अरे दो होगा तो लाइट आएगा, इंटरफेयर करेगा ना. एक सोर्स से तो यू गेट द इल्यूमिनेटेड लाइट व्हिच इज यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा. यूनिफॉर्म मतलब उसमें किधर कैंसलेशन एंड एडिशन का पॉइंट ही नहीं आएगा. आई वांट इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम कितने सोर्सेस चाहिए. तो सो हाउ डू आई गेट, आई मीन हाउ डू आई डिराइव द टू सोर्सेस फ्रॉम द सेम? कैसे पॉसिबल है? तो यू इमेजिन यू कीप व्हाट, मैंने इमेजिन करो एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड रखा सोर्स के आगे, एंड इन दिस कार्डबोर्ड क्या किया? दो पिन होल्स बना दिया. Two pin holes are made in that cardboard. ये दो pin hole becomes the slit because these are going to now behave like secondary source of light. Wow, यहाँ से भी waves आएंगे ना, इधर से भी waves आएंगे. So don't you agree? Whatever changes takes place here, वो इधर भी होगा ना, तो उसके बीच में difference तो किधर होगी? Zero ही हो जाएगा. बड़ा phase difference maintain होगा. So these two sources are said to be coherent. Coherence is possible either by division of wavefront or by division of amplitude. What we have in our syllabus is division of wavefront. जो मैंने बोला, wavefront divide हो गए. यहाँ से spherical wavefront इधर पहुँचेंगे, यहाँ से spherical wavefront इधर पहुँचेंगे. I said this becomes the secondary source of light. It starts emitting secondary wavelets. Even this becomes the secondary source of light. ये भी wavelet emit करेगा. एक particular point मैंने screen पे लेके I can find out, I can analyze कि वहाँ पे bright dark कब बनेगा, क्या conditions हैं. बट मेरे main diagram में इसको दिखाना ही नहीं है, खत्म हो गई स्टोरी बात. These are the two slits. दो slits है, double slit experiment. दो slits है, तो I have to define what उसके बीच का इतना नहीं होता.
दिस इज जितना हो सकता है उतना कम। टू सोर्सेज शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। रीजन बाद में समझेगा मैथमेटिकली। सेवरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज विल बी इन सेवरल मिलीमीटर, इतना छोटा, मतलब ऐसा रियल लाइफ में बताना है तो ऐसा ये भी सेंटीमीटर हो गया। इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, ऐसा इट शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल। तो स्लिट ऐसा नहीं है कार्डबोर्ड है, यहाँ पे मैंने एक सोर्स बनाया और दूसरा सोर्स बनाया, दैट इज अगेन नॉट गिविंग गोइंग टू गिव मी व्हाट डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न। रीजन पे आता हूँ, इट हैज टू बी पिन होल बनाना है, छोटा नैरो। रीजन पे आता हूँ। ऑलराइट, सो प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए, दो सोर्सेस, टू स्लिट्स। स्लिट मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल। सबसे पहली बात, स्लिट सेपरेशन वर्ड आया, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरफेरेंस, बिकॉज डायफ्रैक्शन में भी है ओनली सिंगल स्लिट, फ्रॉन ऑफर्स डायफ्रैक्शन। तो उसमें वर्ड अगर स्लिट विड्थ, एक ही स्लिट रहेगा तो स्लिट विड्थ, तो स्लिट विड्थ कभी क्वेश्चन में आया या पूछा है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डायफ्रैक्शन। स्लिट सेपरेशन वर्ड आया तो डबल स्लिट हुआ ना, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरफेरेंस, राइट। ये पॉइंट पे भी मैं आऊंगा एमसीक्यूज में। इज दिस पार्ट क्लियर? सो नाउ फाइनली मेरे पास एक सोर्स है, वहां से इसको दोनों को एलिमिनेट किया, मतलब इन शॉर्ट नाउ आई हैव टू स्लिट्स, they are separated by some distance d। अब थोड़ा ज्यादा लग रहा है, these are the two slits, it is narrow, pinhole जैसे ही है, and उसके बीच का separation is what, small d। okay, एक पैरामीटर मैंने इंट्रोड्यूस किया, because in terms of this parameters only I am going to define now everything। यहाँ पे नाउ आई कीप व्हाट, कुछ स्क्रीन के ऊपर आई विल बी टेकिंग सम पॉइंट्स एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस क्या। नाउ व्हेन आई से दिस इज माय स्क्रीन, मैंने स्क्रीन रखा तो फिर मुझे ये इसका डिस्टेंस भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। या आज मैं एंगुलर सेपरेशन पे नहीं गया हूं, वो पार्ट मोस्टली आज आई डिड कंप्लीट, और मैं मंडे आऊंगा उसके ऊपर एंगुलर कंडीशंस। तो ये मेरा स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस है, दिस शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, several meters में, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर लाइक दैट। तो प्रैक्टिकली ऐसा अरेंजमेंट है, दिस बिकॉज़ ना सम ऑफ द टाइम्स मैं थीटा को नेग्लेक्ट करूंगा, सेइंग sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, ये डायग्राम से नहीं समझता, ये डायग्राम से समझते। This is very very small, छोटा d, ये beautiful diagram, and this is capital। तो experimental arrangement ऐसा है, तो ठीक है, diagram draw करते टाइम, so this might give you some wrong impression, इतना पास में और this should be जितना हो सकता है उतना ज़्यादा, this should be जितना हो सकता है उतना कम, then only I get the distinct and very defined interference pattern। word distinct पे आता हूँ last में, okay, अब बराबर समझना। You understand simple geometry की, मैंने अगर एक सेगमेंट लिया, मैंने एक सेगमेंट लिया एंड उसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डोंट यू थिंक एनी पॉइंट यू टेक ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट विल बी इक्विडिस्टेंट? अब मेरी बात समझना, डोंट यू एग्री S1 S2 भी एक, सॉरी S1 S2 जो दो स्लिट्स है, वो भी एक सेगमेंट ही, जिसका सेगमेंट का लेंथ है छोटा d। इफ आई टेक उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, let's call this point as O। don't you think this point O will be equidistant from S1 as well as S2? मतलब अगर मैंने सोचा कि S1 में से कोई लाइट आया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा टू रीच टू O, S1 हो, हाँ ना, एंड S2 में से कोई लाइट आया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा टू रीच टू पॉइंट O, S2 हो, हाँ ना। बट डोंट यू एग्री ज्योमेट्रिकली S1 और S2 विल बी सेम, वो दोनों सेम है, मतलब दोनों सोर्स में से जो लाइट आ रही है दैट लाइट मस्ट हैव कवर्ड द सेम डिस्टेंस, मतलब कोई भी लाइट ने एक्स्ट्रा पाथ कवर नहीं किया, मतलब कि पाथ डिफरेंस जीरो, पाथ डिफरेंस नाम से समझ में आ रहा है, पाथ डिफरेंस, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके बीच का सेपरेशन, but they are covering same distance to reach to that particular point। No matters where you put a screen, screen को थोड़ा पीछे लेके जाओ, फिर भी वो S1 और S2 तो सेम ही रहेगा ना। So this point on the screen where
Path difference is always zero on the perpendicular bisector. I call that point as what? ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, सब काउंटिंग इधर से ही चालू होता है। जैसे एसएचएम में अपना मीन पोजीशन रेफरेंस पॉइंट होता है, यू स्टार्ट मेजरिंग एवरीथिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। वैसे द सीबीबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सीबीबी? सेंट्रल राइट पॉइंट बेंड, सॉरी, और सीबीएफ सेंट्रल राइट फ्रिंज। एवरीवेयर जिधर मैं बेंड बोल रहा हूँ वो फ्रिंज भी होता है, तो देखिए दिस इज सेंट्रल राइट फ्रिंज, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट। आई सेड नो मैटर्स आप स्क्रीन को कितना आगे पीछे किधर भी रखो, ये पॉइंट एग्जैक्टली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ऑलवेज गोइंग टू बी सेंट्रल राइट में। सेंट्रल राइट में मतलब अगर मैं ऑर्डर की टर्म्स में बात करूं, ऑर्डर दैट छोटा है n, तो जीरो राइट बैंड है, दैट्स अ रेफरेंस, बिकॉज़ मेरा काउंटिंग हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा, इधर ऑन ईदर साइड लाइक दैट, कमिंग टू दैट पॉइंट। वेट, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट समझ में आ रहा है? Point O is the central right line or that? बच्चा पॉइंट इट इज दिस पॉइंट एट विच जो वेव्स आ रहा है, हेलो सब ऐसा सो बेटा वेव आ रहा है, तो वहां पे एग्जैक्टली क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट ट्रफ के साथ ट्रफ ओवरलैप करेगा, यू गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी। और अगर मैंने एम्पलीट्यूड सेम ले लिया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बिकम a plus a2 और इंटेंसिटी विल बिकम 4i। It was 4i cos square delta by 2, delta 0 ले लो cos 0 1, so it becomes 4i, maximum intensity you get। हाँ है ना? Irrespective of ये कितना डिस्टेंस, हमेशा always, so I call it a central bright band। क्वेश्चन कम सर वो सर्कुलर पैटर्न दिखता है कि स्ट्रेट क्या दिखता है? अरे तुम लोग दो स्लिट्स को ऐसा लिया ना एंड इसको परपेंडिकुलर इफ यू कीप अ स्क्रीन ना, तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न्स बनती है, bright dark bright dark bright dark ऐसा, you know what is it, concentric rings, alternate dark and bright rings in there। I'm not going to get that circular pattern here because those slits और screen कैसा है parallel, यहाँ पे वो कैसा है perpendicular, ये सब geometry है, I mean hyperbola का locus and all that join करके you are going to get what straight line, bright dark की straight line। मैं अभी लाइन नहीं बता सकता, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं टॉप व्यू बता रहा हूँ बेटा, ऊपर से दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखा तो यू सी सेंट्रल ब्राइट बैंड, देन फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट एंड ईदर साइड यू गेट द स्ट्रिप्स। मैं तो टॉप व्यू बता रहा हूँ, पॉइंट दिखा रहा हूँ, मैं क्लियर समझ? क्लियर काम लगी? Okay, next point. I am not interested in this all, ये तो समझ में आया मुझे, experimental setup, मुझे ये point पे interest है, okay? I am interested in this point P somewhere on the screen. Question में कम से आपने ऊपर क्यों लिया, अरे नीचे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। Point is how far it is, ये जो separation है ना, x मान लो, छोटा x लिख रहा हूँ, वो सब कुछ डिसाइड करे कि यहाँ पे ब्राइट बैंड है कि डार्क बैंड है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, मुझे सोचना है स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट बैंड से एक पॉइंट है जिधर डार्क बनेगा कि ब्राइट, वो मुझे डिसाइड करना है एंड कुछ मैथमेटिकल कंडीशन लिखना है कि एग्जैक्टली वो ब्राइट डार्क कब होगा एंड आई वांट टू एनालाइज दैट। तो आई वांट टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट P। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसका डेरिवेशन था व्हिच आई एम नॉट डूइंग, like to take one point exactly सामने, ये d by 2, ये भी d by 2, ये डिस्टेंस हो जाएगा x minus d by 2, यहाँ से you take this becomes x plus d by 2। पाथ डिफरेंस what is it exactly? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दो राइट एंगल ट्रायंगल में you get है, जाने तो जरूरत नहीं है। पाथ डिफरेंस, PD मतलब नॉट फेज डिफरेंस ना, PD मतलब पाथ डिफरेंस एवरीवेयर, that is this dark name, it is this S2P minus S1P। मैंने अभी बोला पाथ डिफरेंस मतलब how much extra distance light covers to reach to that point from the two sources। तो अगर S1, हेलो, यहाँ से कोई लाइट गया और यहाँ से कोई लाइट गया, तो don't you think here S2 में से जो source 2 में से जो लाइट जा रहा है it's covering extra distance। So how much extra distance? So simply S2P minus S1P is the extra distance it covers। That's what is path difference, right? Hello.
अंजलि, हेलो। अब क्या किया मैंने? अरे यार सोचो ना, पॉइंट P could be here also ना, तो in that case x1 भी ज्यादा हो जाएगा x2 से, तो source x1 is to right hand that is covering extra distance, so I put it in modulus sign. Derivation was what? Part difference was equal to ये जो expression मिलेगा वो derive करना था. In terms of the parameters, what parameters I have defined? 3, I'm so sorry, 2. Diagram में 2 ही दिख रहा है ना, एक small d और एक बड़ा d. And writing now one more. ये सोर्स है, इसकी क्या रहेगी? कुछ वेव है. कैन यू गाइस सी मैंने दोनों जगह पे वेवलेंथ क्या लिखा? अरे दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स ना यार. एंड वो जो सोर्स है, दैट सोर्स शुड बी व्हाट? वो जो मेन सोर्स था वो शुड बी व्हाट? मोनोक्रोमैटिक. दैट शुड नॉट बी पॉलीक्रोमैटिक. अगर वो पॉलीक्रोमैटिक है तो ये दोनों भी पॉलीक्रोमैटिक बन जाएगा, बिकॉज़ दिस टू डज नॉट, आई मीन दे आर बीइंग इल्यूमिनेटेड फ्रॉम सम सोर्सेस ना. तो सोर्स मोनोक्रोमैटिक क्यों होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक होगा देन ऑलवेज यू फाइंड सर्टेन डिस्टेंस के लिए यहां पे क्या बनेगा? समझो ब्राइट तो ऑलवेज ब्राइट, यहां पे क्या बनेगा? डार्क तो ऑलवेज डार्क. तो यू गेट व्हाट? स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. समझो अगर वही सोर्स पॉलीक्रोमैटिक है, मतलब यहां पे ये पॉलीक्रोमैटिक, मान लो व्हाइट सोर्स, तो यहां से रेड कलर का वेव भी जा रहा है, ग्रीन भी जा रहा है, ब्लू भी जा रहा है, वॉयलेट भी जा रहा है. तो इट मे हैपन कि रेड एंड रेड की वजह से यहां पे ब्राइट बैंड बन रहा है, दोनों का क्रेस्ट ओवरलैप कर रहा है. बट रेड एंड यहां से जो ग्रीन आया उसका क्रेस्ट के साथ ट्रफ ओवरलैप कर रहा है. नहीं समझ? सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यहां पे आई माइट गेट ड्यू टू रेड ब्राइट, बट रेड एंड ग्रीन विल गेट डार्क. आई मीन दैट इज सम, बिकॉज़ अगर ये पॉलीक्रोमैटिक नहीं, आई मीन सॉरी पॉलीक्रोमैटिक है, से मे बी व्हाइट लाइट लेना नहीं है, बट व्हाइट. सो हाउ मेनी कलर व्हाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ? अरे मतलब स्क्रीन के ऊपर आई विल गेट 7 डिफरेंट डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, 7, बट दे व्हेन दे ऑल गेट मिक्स वो सब सबमर्ज हो जाएगा. तो आई वोंट बी गेटिंग एनी डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, सब सबमर्ज हुआ है. किसी की वजह से ब्राइट, किसी की वजह से डार्क, किसी का ब्राइट एंड डार्क भी कोइंसाइड कर रहा है. तो आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि मैं क्या देख रहा हूं. सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमैटिक, सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, सोर्सेस शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल, सोर्सेस शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल. वो क्लोजनेस वाली बात नहीं की, ये ज्यादा वाली बात नहीं की अभी. दिस शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, कभी टू दैट पॉइंट. बट बाकी सब पॉइंट्स बोला मैंने, कोहेरेंसी क्यों, नैरो क्यों? अरे नैरो नहीं होगा, ऐसे सोर्स लिए मैंने, डोंट यू री, अगर ज्यादा बड़ा लिया तो इंटेंसिटी यहां से बहुत सारे वेव्स जाएंगे ना, तो अगेन दैट में डिस्टर्ब द इंटरफेरेंस पैटर्न. तो नैरो होना चाहिए, राइट? मल्टीपल वेवफ्रंट नहीं जाएगा, नैरो होना चाहिए, कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक. फाइन, यहां तक क्लियर. तो मैंने मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया. तो नाउ आई वांट टू गेट दैट, वो डेरिवेशन था कि दिस पार्ट डिफरेंस यू गेट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लैम्बडा कैपिटल T छोटा d. तो व्हाट यू फाइंड हियर इज पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू x into small d by big D. ये आपको मिलता है डेरिवेशन, ये आपको डिराइव करके मिलता है. नहीं समझ में आता तो मैं एक पेज का डेरिवेशन छोटा सा आई विल फॉरवर्ड इट. मैं करूं डिराइव? नहीं ना, वो बोर्ड्स का पार्ट है. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. क्वेश्चन कम्स एट द वेवलेंथ किधर आया, मैं आता हूं उस पे, बट विद द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यू गेट दिस. तो डोंट यू री, आपने ये पॉइंट P और दूर लिया, एक्सचेंज कर दिया, तो फिर इन दैट केस पार्ट डिफरेंस भी बढ़ेगा. फिर अकॉर्डिंगली हर एक जगह पे कुछ अलग अलग ब्राइट डार्क बैंड बन सकते हैं. समझना है, वही समझना है. ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. इधर कुछ स्टार बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसे कनेक्ट करने जा रहा हूं, तो वेवलेंथ आएगा पिक्चर में. अब बराबर समझ मेरी बात. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Please look here. At point P, what is the point P here? The interfering point. ठीक से क्या नहीं यार, विषमनु जी का मर्जी, वो इधर भी ले सकती है ना, कने इधर भी ले सकती है, कोई इधर भी ले सकता है, कोई क्या फर्क पड़ता है? स्क्रीन को कोई पीछे और भी शिफ्ट कर सकता है. तो point P तो सब वेरिएबल है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. At point P, if suppose there are only two possibilities, intermediate condition तो लेना नहीं है, या तो कंप्लीटली ब्राइट बैंड बनेगा या ब्राइट फ्रिंज, या फिर क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज और डार्क बैंड. दो ही पॉसिबिलिटीज है, इधर कंप्लीटली ब्राइट और कंप्लीटली डार्क. अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा यहाँ पे तो, बिकॉज़ दे आर बोथ बीइंग डेराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स, एम्पलीट्यूड तो सेम हो ही जाएगा ऑब्वियसली. हाँ ना,
अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो आई से जहां पे डार्क बैंड बन रहा है वहां पे a माइनस a नहीं होगा, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 इज नॉट 0 बट a माइनस a is, so I want dark to be completely dark. समझ में आ रहा है? तो ये डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड शुड बी सेम और इंटेंसिटी शुड बी सेम. So this A1 minus A2 then will it be like a dark gray and this A1 Exactly. will be So there is a gray shade, but light कुछ तो रहेगा. It's not going to be no light, absolutely no light. When I say complete dark, मतलब no light. That's the condition. Are you getting my point? So come back. जब मैं bright band बोल रहा हूँ, I know phase difference. फटाफट बोलो. It was 2n times pi. It was n here, not n. n यहाँ पे था. 2n times pi. उसके रेफरेंस में मैंने पार्ट डिफरेंस क्या निकाला था? Was it n times lambda? Or it is 2n times lambda by 2? हाँ ना? But now experimental arrangement के हिसाब से what should be the part difference? x d by बड़ा d. बट ये x के साथ में क्या लिख रहा हूँ? n. वो उसका ऑर्डर बता रहा है, xn, nth ऑर्डर. मैंने बोला x3, तो you understand it's third right hand की बात है. मैंने बोला x7, तो you understand कि I'm talking about seventh right hand and so on. मुझे सर इतना बताओ, ये पार्ट डिफरेंस है, ये भी पार्ट डिफरेंस है, दोनों ब्रैकेट को इक्वेट करो तो will I be getting xn is equal to n times lambda बड़ा d by small d. I'm sorry but मैं ऐसे याद रखता हूँ, lambda बड़ा d कैपिटल d by small d. गड़बड़ नहीं होता यार बोलने में. हाँ ना, xn is n times lambda d by small d. जो याद रखना है, जो कुछ भी याद क्वेश्चन आने वाले हैं, सब जगह पे काम करने वाला है xn. What is x? एक मिनट बेटा. What is x suffix में का मतलब वो ऑर्डर बता रहा है. तो मैंने बोला x3, तो यू आर वेरी क्लियर, थर्ड ब्राइट बैंड. अब मुझे बोलो थर्ड ब्राइट बैंड, तो पार्ट डिफरेंस कितना? 3 टाइम्स लैम्ब बड़ा d by small d. अच्छा भाई d में x दिख रहा क्या है? हाँ नहीं क्या? इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड. तो सेंट्रल ब्राइट बैंड से थर्ड ब्राइट बैंड कितने डिस्टेंस पे? तो 3 टाइम्स लैम्ब बड़ा d by small d जितने डिस्टेंस पे. सेकंड ब्राइट बैंड कितने डिस्टेंस पे? 2 टाइम्स लैम्ब बड़ा d by small d जितने डिस्टेंस पे. एंड सो ऑन सो. Question comes, sir, can it be on the lower side? हाँ, why not? मैंने बोला नीचे 7 bright band. So it should be like what? Extend from the CBB 7 times lambda बड़ा d by small d जितने distance. तो what is extend? Nth bright band. Nth bright band का distance from where? Center bright band. How much is that? N times lambda बड़ा d by small. Question comes, sir, कभी 1.5 आया तो अरे 1.5 हो ही नहीं सकता, that's not an integer. I did not write this n is 1.5. It was all integral multiple ना. तो n could be 1, 2, 3, 4. I'm sorry. 0 1 multiple. यहाँ पे 0. 0 मतलब सेंट्रल ब्राइट. अरे यार ये 0 लिया तो x 0. एक 0 ले तो किधर आ गए दोनों? तो 0 ब्राइट बैंड हुआ है. नंबर इतने सेंट्रल ब्राइट बैंड is 0 order. 0 order डार्क बैंड नहीं होता. So I took there not 2m plus 1 by 2m minus 1. तो एकदम क्लियर रहेगा. But 2m plus 1 मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं, वो भी ऑड मल्टीपल होता ही. Am I very clear now? अब सब कनेक्ट होगा जो स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में बताया. Look here. Is this done? डार्क बैंड के लिए फेज डिफरेंस क्या लिखा था मैंने? 2m minus और इस लास्ट में पहले लिखा था बट वो एक बार आना चाहिए. बहुत गड़बड़ करते हो इसी में. Dark band is 2m minus 1 times. So अगर मैंने phase difference, sorry, part difference, if you remember, I had written it as m minus half times lambda. ये मेरा part difference था. But actually part difference I know now what it is. x small d by dt. हाँ ना. अब मुझे बोलो. I should not write only x. I should write x. but अभी गड़बड़ वही होगा. सर आपने लिखा x पर तो हम लोग को भी समझेगा. फिर राइट बोल रहे हो कि फिर डार्क बोल रहे हो. तो नॉट राइटिंग xm but I'm writing what xm dash. तो अगर मैंने मुझे ये पहले बताओ इन दोनों को इक्वल किया तो will I be getting xm dash is m minus half times lambda बड़ा d by small d. This is what I wanted to remember. अब समझो. मैंने बोला x पर dash dash है मतलब का डार्क. तो कौन सा डार्क बैंड? फिफ्थ डार्क बैंड. मुझे बोलो what is x1 dash? First dark band. Can this be x0 dash? Because m varies, sorry यार, m varies from, तो minimum number 1 से चालू करना है. बोलो 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 minus half, तो lambda बड़ा d by
2D, मतलब वो 0.5 टाइम्स लैम्बडा डी बाई डी पे फर्स्ट डार्कनेट आ रहा है, लाइक दैट। हाँ या ना? जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी के कनेक्शन के साथ में लिख भी देता हूँ। नो लेकिन नो बट नो वाई, 1 मिनट वेट, अभी देखो कुछ लिखना नहीं है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हो सकता है उतना ध्यान दो। पूरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विद बाइप्रिज्म क्लियर, यू कैन सॉल्व मार्क, मतलब पूरा कंप्लीट कर दो। सुनाओ सुनिए, आई सेड ये मेरा स्क्रीन है गायत्री, सॉरी समझेगा बेटा, वेट बेटा, मैं नहीं समझा तो मुझे पूछो। दिस इज माय स्क्रीन, बराबर समझना, एक पॉइंट क्लियर करना। ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट बैंड। स्टार्ट हमेशा कहां से करने का? सेंट्रल ब्राइट बैंड। व्हाट इज सेंट्रल ब्राइट बैंड? इट्स O। ये मेरा सेंट्रल ब्राइट बैंड है। अरे जहां पे हमेशा पार्ट डिस्टेंस कितना रहेगा? आई एम इंटरेस्टेड इन जस्ट अदर पॉइंट्स। नॉट टेल मी व्हाट इज दिस 1B, मतलब फर्स्ट ब्राइट। पुट ब्राइट की बात कर रहा हूं, पुट हियर 1, तो कितना डिस्टेंस होगा? 1 टाइम लैम्प बड़ा d by small d. So how much is this separation? Lambda d by d. What is this? Second bright. How much is this separation? Sabash, very good. It's going to be 2 times lambda d by small d. बोलो हाँ ना? इधर ही देखना। If I subtract this 2 times lambda d by small d from lambda d by small d, is it like 2 minus 1, 1? Yeah. I repeat, second bright band का separation और first bright band का separation subtract किया, will I be getting distance between these two consecutive bright bands? Yes. Distance between two consecutive ब्राइट बैंड और आगे जाके इज कॉल्ड व्हाट? या वेरी इंपॉर्टेंट, बैंडविड्थ और व्हाट? फ्रिंज विड्थ। मुझे बताओ, उसको हम डिनोमिनेटर में कैपिटल एक्स, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एनी इंटरफेयरिंग पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सीबीबी। कैपिटल एक्स में यूज कर रहा हूं पर्टिकुलरली फॉर फ्रिंज और बैंडविड्थ। Some of the books में ये fringe width को बीटा से भी denote करते हैं. No problem, you can take that. I'll go ahead with capital X. Will it be here? Look at this diagram. Will it be lambda बड़ा d by small d? जैसे रीजन में मैं बार-बार ऐसा बोल रहा हूँ, lambda बड़ा d by small d, lambda big d by small d, जैसे याद रखना। हाँ ना? क्वेश्चन कम सर, ये तो आपने 2 और 1 बोला। अरे तुम लोग कोई भी दो ले लो। 11th bright band बोलो कितना डिस्टेंस? 11 times lambda d by d. 10th bright band 10 times 11 minus 10 तो 1 ही होता है। Distance between any two consecutive word important. Bright band is what would be lambda d by small d. That is what I call it as fringe width. But verified, even this is applicable for what? Dark band. अब बराबर समझते जाना। Can n be 0? No, never. अब समझ में आएगा। अरे आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 dark band होगा। 0 dark band होता ही नहीं। There is no point on the screen where always dark band found. Because part difference 0 is the condition for bright band. सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है, सेंट्रल डार्क बैंड, सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं होता। दैट कैन बी नंबर 0 अगर होता तो, इसलिए मैंने माइनस वाला फंडा लगा के 0 से चालू नहीं किया, 1 से चालू किया। प्लस भी चलता था, पर फिर 0 आता, फिर वो कंफ्यूजन होता। 0 मतलब फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट मतलब सेकंड डार्क, 2 मतलब थर्ड डार्क, एक ऐड क्यों करो, उसे ऐसे रखते। Am I clear? क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोलो। अगर यहाँ पे 1 डाला तो will be 1 minus half, मतलब लैम्प बड़ा d by small d का हाफ, लैम्प बड़ा d by small d का हाफ, मतलब यहाँ पे क्या आया? फर्स्ट डार्क बैंड। तो now you understand two statements. All bright band and dark bands are alternately spaced and they are always equally spaced. दोनों important statement है। मतलब आप ये डिस्टेंस कितना है बोलो? 0.5 times lambda d by d ना, अरे वो डिनोमिनेटर में 2 है तो 0.5 लिखा। So very obvious,
सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड फर्स्ट ब्राइट बैंड के बीच में डार्क बैंड आता है। तो मुझे बताओ फर्स्ट ब्राइट बैंड और सेकंड ब्राइट बैंड के बीच में क्या आएगा? सेकंड डार्क बैंड एंड सो ऑन and so on. आगे चलते जाओ. You put 2 here, 2 minus half is what? 1.5. 1.5. So 1.5 is between 1 and 2, right? Exactly. So this is the position of your second dark band. Are you guys understanding this diagram? Yes. And you understand 1.5 minus 0.5 भी 1 ही होता है. So you take any two consecutive bright band or dark band. तो उसके बीच का separation is called fringe width. That is always going to be what? Lambda बड़ा d by small d. This is very important discussion इसके ऊपर आगे जाते हैं. ठीक है मतलब? Right चालू कर दिया मैंने MCQs का. Number 1, number जो भी आगे. Tell me, can I conclude from here that the fringe width is पहले दो very obvious वाले. Fringe width is directly proportional to capital D. इसलिए मैंने बोला जितना हो सकता है उतना कैपिटल डी शुड बी लार्ज बिकॉज़ यू ऑलवेज वांट फ्रिंज विड्थ टू बी ऑन व्हाट साइड? हायर. जितना फ्रिंज विड्थ, अब सुनो मुझे जो दिखने वाला है पैटर्न वो ऐसा दिखने वाला है. अरे वो इक्वी स्पेस है मतलब ये मेरा फर्स्ट ब्राइट बैंड है, सेंटर ब्राइट बैंड. तो ये फर्स्ट ब्राइट, ये डार्क, ये सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन. फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट. अरे सेंटर ब्राइट के बाद डार्क आना चाहिए ना. नंबर पहले है तो फर्स्ट डार्क है फिर ब्राइट आएगा. लाइक दैट आई गेट ऑन नंबर इन. बोथ साइड में सेम ही होगा. सेम ही होगा बिकॉज़ डायग्राम नहीं ड्रॉ किया मैंने. टोटल वेरी कोई भी दो ब्राइट ले लो, कोई भी दो ब्राइट ले लो. मान लो ये दो, इसको फ्रिंज विड्थ बोलना चाहिए. कोई भी दो डार्क ले लो, कोई भी दो डार्क ले लो, ये दो, इसको भी फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं. इधर साइड, इधर साइड. आई सेड फ्रिंज विड्थ शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. Fringe width बड़ा होना मतलब I can easily distinguish between bright band and dark band. It's going to be a distinct interference pattern. जितना fringe width छोटा होगा, this is going to get submerged. Bright and dark bands almost submerged हो जाएंगे. तो मेरा interference pattern will not be distinct. वो indistinct interference pattern बनेगा. So fringe width should be always on higher side. Fringe width higher side. So capital D should be large. वो mathematically समझना. Fringe width higher side. बोलो. It's inversely proportional to छोटा d. हाँ ना. So small d is what? Slit separation. It should be as small as possible. Are you understanding? क्या लगा? हाँ. इकडे. मान सकते. Are you understanding? इनवर्स वाले में आ रहा है. तो d should be several millimeter. जितना d छोटा ले उतना फ्रिंज विड्थ बड़ा बने. जितना फ्रिंज विड्थ बड़ा उतना my interference pattern is to be more distinct and clear on it. ठीक है? और well defined. Next is very important. Is fringe width directly proportional to wavelength? So which color you will prefer to get the higher wavelength, higher बड़ा fringe width? Red, because red color का wavelength is maximum. मैंने 4 कलर दिए बोला कि clear interference pattern के लिए which color use करें? Not that. One important thing. Is wavelength inversely proportional to mu? Yeah. So can I say fringe width is inversely proportional to mu? In order to have highest fringe width, maximum fringe width, mu should be minimum. मिनिमम किसका होता है? एल. तो हम लोग ये पूरा एक्सपेरिमेंट एल में परफॉर्म कर रहे हैं. बट व्हाट इफ ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्लोड एंड स्प्लिट एंड स्क्रीन और सब मैंने पानी के अंदर कर दिया. तो इन दैट केस